Good morning, friends. I welcome you in today's morning online class. Today, we will learn a very wonderful lesson, a very wonderful story by Mr. Ruskin Bond, and the name of the story is The Adventures of Toto. Dear friends, you know that Ruskin Bond is a very famous writer, and you have his stories in class 6th, class 7th, and in class 8th also. And in class 10th, you have a very wonderful story of him, the thief story. And this year also, you are blessed with the wonderful story of him, The Adventures of Toto. Ruskin Bond belonged to the British descent, but he was born and brought up in India, and he has more than 500 books to his credit. He has written great literature for children, and most of his books, most of his stories are there in NCERT textbooks, in many universities. His books uh, have been taught, are being taught in many universities and many schools also. So, dear friends, this is the second story of our Moments book, the supplementary reader book. So, we will begin the story, and the name of the story is Adventures of Toto, and this story is by Mr. Ruskin Bond. So, let us have a brief introduction of our dear writer. So, the Adventures of Toto, Chapter 2, Moments, Class 9. So, Ruskin Bond was born on 19 May 1934, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore, Mussoorie, in India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for his very famous book, Our Trees Still Grow in Dhera, his novel in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushana in 2004. So, he is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore, Mussoorie, India. He is an Indian author of British descent. He is considered to be an icon among the Indian writers and children's authors, and a top novelist also. I remember, dear friends, his story, uh, the banyan tree, then the blue umbrella, his first novel, his very first novel, his very first book, the the roof of my house or something else, and many more stories of Ruskin Bond. They are very much, you see, very much fine and readable, you see. One more thing about Ruskin Bond is that he wrote very insightfully, and all of his writing has an unique touch of simplicity, decency, you see, and unique tenderness. All the children love him very much. He is still there in at his home, and working regarding the literature for children. He is considered to be an icon among Indian writers and children's authors, and a top novelist. He prolifically authored inspiring children's books and was awarded the Sahitya Akademi Award to honor his work of literature. So, now we will hit the lesson, The Adventures of Toto. This is a wonderful picture of a monkey. You can call him Toto. He is a
mischievous monkey. Okay, the adventures of Toto. Have you ever had a monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let us find out whether he is mischievous or docile. Now we will hit the lesson. हम लेसन को तुरंत शुरू करते हैं. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था. किससे खरीदा था? बॉट. बाय का पास्ट टेंस बॉट. किससे खरीदा था? एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था. कितने में खरीदा था? फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. ओके, तो इसका अगर इफ आई ask you to make it passive voice of this sentence is Toto. देखिए, Toto was bought from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Okay, fine. The Tonga driver used to keep the little red monkey feeding tied to a feeding trough. tie का मतलब होता है बांधना. tie means बांधना, और फीडिंग ट्रो का मतलब होता है वो एक तरह खूंटी जैसा होता है ना, एक तरीके से ये फीडिंग ट्रो बांध देते हैं इस तरीके से. ये देखिए, इस तरीके से फीडिंग ट्रो बांध देते हैं और उसके पीछे जो है घास लगा देते हैं, तो वहाँ पर उसको बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो वो इतना आउट ऑफ प्लेस वहाँ पर लग रहा था, इतना अजीब वहाँ पर लग रहा. आउट ऑफ प्लेस का मतलब अजीब वहाँ पर लग रहा था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, ग्रैंडफादर वॉज टू मच फॉन्ड ऑफ यू सी पेट एनिमल्स. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उनको जो है अपने प्राइवेट जू का हिस्सा बनाएंगे. रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर के बारे में और रस्किन बॉन्ड के घर के बारे में बड़ा फेमस है कि उनका घर जो है एक छोटा सा जू जैसा था, प्राइवेट जू उनके ग्रैंडफादर का था. और उन्हीं के बीच जो है इनका बचपन जो है वहाँ पे गुजरा था. वहाँ पे एक पेट स्क्विरल था, पिथॉन था, एक छोटा पिथॉन, समझते हैं ना पिथॉन, एक स्नेक का टाइप होता है. उसके बाद स्क्विरल्स थे, टॉर्टॉइजेस थे, देन डंकी वॉज देयर, ओके, गोट्स वेर देयर. सो इन दिस वे he used to have a private zoo. So grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Now आगे, टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी. टोटो क्या था? बड़ा ही प्रेटी मंकी था. प्रेटी का मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ. बोलता है उसकी जो आंखें थी बड़ी ही ब्राइट आंखें थी और उसकी आंखों से जो है मिस्चीफ झलकती थी. मिस्चीफ का देखिए एडजेक्टिव है मिस्चीवस. मिस्चीवस यानी होता है शरारती. मिस्चीवस यानी शरारती, उसका नाउन नहीं है मिस्चीफ. समझते हैं ना? तो वो बड़ा प्रेटी मंकी था और उस जो प्रेटी था उसके बारे में बता रहा है. क्वेश्चन भी है आपको कि हाउ डू यू कंसिडर दैट Toto was a pretty monkey. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows and his teeth. और उसकी आंखें कैसी थी? Which were a pearly white. कैसी आंखें थी उसकी? Pearly white आंखें थी. ठीक है, मतलब मोतियों जैसी सफेद. पर्ल यानी क्या होता है? मोती होता है. पर्ल यानी होता है मोती. तो उसकी आंखें एकदम मोतियों जैसी सफेद थी. एंड वे आर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. अब देखिए ये शब्द आपको जरा परेशान करेगा. एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश. एंग्लो का मतलब क्या होता है? इंग्लिश दोस्तों. एंग्लो मीन्स इंग्लिश. अब एंग्लो का मतलब अगर इंग्लिश होता है तो एंग्लो इंडियन मतलब कौन होते हैं? ऐसे इंडियन लोग जो इंडियन कस्टम को फॉलो करते हैं. ओके, अब ये कौन से फैमिली को बिलोंग करते थे? एक इंडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं लेकिन है वो ब्रिटिश. कौन? रस्किन बॉन्ड.
और आप देखिए एंग्लो इंडियन राइटर्स भी होते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर एंग्लो इंडियन राइटर है, कमला दास एंग्लो इंडियन राइटर है, ठीक है। उसके बाद आपकी सरोजिनी नायडू एंग्लो इंडियन राइटर है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं, और एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, एंग्लो इंडियन लेडीज़ मतलब ऐसी लेडीज़ जो इंग्लिश कस्टम को फॉलो करती है। तो वो जो लेडीज़ थी, गांव की लेडीज़ तो जो है बंदर वंदर को बिल्कुल डरती नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड बोलने से अच्छा है हम बोलेंगे कि जो मॉडर्न घरों की लेडीज़ थी, तो मॉडर्न घरों की लेडीज़ जो है वो इसकी दांतों से बड़ी डरती थी। वो जो एकदम स्माइल करता था अपनी परली वाइट दांतों से, जो स्माइल करता था, कौन, टोटो, उससे वो एकदम डर जाती थी। देखिए परली वाइट, मैंने एक चित्र भी आपके लिए बनाया, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड, यस दिस इज परली वाइट। ये क्या है, परली वाइट आंखें उसकी। बड़ा अच्छा चित्र है, देखिए, गुड। नाउ बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ जो थे एकदम ड्राइड अप थे, उसके हाथ एकदम ड्राई थे, एंड एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। और ऐसा लग रहा था कि कई सालों से जो है वो सन में, सूरज में जो है एकदम खराब हो गए हैं, पिकल्ड हो गए हैं। पिकल समझते हैं ना, पिकल का मतलब हमारे घर का जो अचार होता है, एकदम ऐसा गुदगुदा सा हो जाता है वो, इस तरीके से वो उसके हाथ थे। बट एट हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड विकेट। लेकिन उसके जो फिंगर्स थे वो बड़े ही क्विक थे और बड़े ही विकेट थे। विकेट का मतलब दुष्ट होता है, विकेट का मतलब दुष्ट, मतलब कोई भी चीज़ को ऐसे जो है अपने हाथ से वो अपने हाथ में ले लेता था, या फिर किसी के भी कपड़े फाड़ देना, किसी की भी जो है कोई भी चीज़ को उठा लेना। तो उसकी जो फिंगर्स थे बड़े क्विक थे। एंड हिज टेल, लेकिन उसकी जो टेल थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, एंड ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। और ग्रैंडफादर ये बिलीव करते थे कि उसकी जो टेल है वो उसके गुड लुक्स को जो है बढ़ाती है। और वो ये भी मानते थे कि टेल किसी के भी गुड लुक्स को बढ़ा सकती है, समझ रहे हैं ना। मतलब इंसानों की भी अगर टेल होती तो उनकी वो खूबसूरती बढ़ जाती। तो वो बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं, हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। उसकी जो टेल थी एक थर्ड हैंड का काम करती थी। आपने गोलू ग्रोज हिज नोज, 7th के 8th में एक लेसन है, आपने उसमें देखा होगा कि अपने ट्रंक से जो है गोलू डेलिकसीज को जो है चुरा कर खा जाता है। जैसे डेलिकसी का मतलब होता है खाने की चीज़ें, बनाना हो गया, कोई स्वीट डिश हो गई, कुछ भी हो गया, इस तरीके से। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। तो वो जो है अपने थर्ड हैंड का उपयोग किस लिए करता था? थर्ड हैंड मतलब उसके टेल का उपयोग ब्रांच से लटकने के लिए करता था। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया, ये देखिए इस तरीके से, हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच। वो अपने थर्ड हैंड का यूज करता था, पूंछ का उपयोग करता था लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। स्कूपिंग यानी खींच कर ले लेना, इसको बोलते हैं स्कूपिंग। ये देखिए यहाँ पे, स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और उसके हाथ में जो है कोई भी डेलिकेसी अगर नहीं आती, कोई भी चीज़ अगर वो अपने हाथ से चुरा नहीं पाता, अगर अपने हाथ से उठा नहीं पाता, डेलिकेसी का मतलब खाने की चीज़ होती है। ये देखिए यहाँ पे वर्ड है डेलिकेसी। डेलिकेसी मतलब खाने की चीज़। अगर कोई भी चीज़ अगर वो अपने हाथ से उठा नहीं पाता था, तो वो क्या करता था? अपने थर्ड हैंड का यूज़ करता था, अपने पूंछ का यूज़ करता था उस चीज़ को अपने कब्जे में करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट। ग्रैंड मदर को बड़ा गुस्सा आता था। शी ऑलवेज फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स टू गेट एंग्री। फर्स्ट मीन्स टू गेट एंग्री। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal। जब भी कभी ग्रैंडफादर अपने घर में कोई बर्ड और या एनिमल लाते,
तो ग्रैंड मदर जो है बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो ये डिसाइड किया गया दैट टोटोज प्रेजेंट्स शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया, बड़ा आसान शब्दों में लिखा है, हाँ बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो के प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाएगा, कब तक, जब तक ग्रैंड मदर अपने अच्छे मूड में नहीं आ जाती। ग्रैंड मदर जो है वो अच्छे मूड में रहेगी तब भी उसको बताया जाएगा। फिर क्या हुआ? सो ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो उसको कहाँ रखा? एक क्लोजेट में रखा उसको। क्लोजेट होता है छोटे सा अलमीरा, तो समझ रहे ना, दीवार का क्लोजेट, दीवार में जो बनी अलमीरा होती है उसको क्लोजेट बोलते हैं। तो उसको क्लोजेट के अंदर छिपा के रख दिया गया। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको बांधा गया, ठीक है ना, एक कील से उसको, मान लीजिए ये उसकी बेडरूम की वॉल है, इस तरीके से ये वॉल है, इसमें कीला बांध दिया गया और उसमें उसको बांध दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? टाइट सिक्योरली और सो वी थॉट टू ए पेग fastened into the wall, or a peg fastened into the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, release यानी छुड़ाना, मुक्त करना, मुक्त, रिलीज का मतलब होता है मुक्त होता है, जेल से कैदी मुक्त होता है ना, उसको रिलीज करना होता है। तो कुछ घंटों बाद जब हम आए और डिसाइड किया कि हमने कि अब थोड़ा सा उसको बाहर ले जाएंगे, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। ये देखिए ब्रिक एंड प्लास्टर, समझते हैं ना, दीवार होती है, दीवार के ऊपर जो है ब्रिक लगा होता है, सॉरी ब्रिक्स होती है अंदर और ऊपर से प्लास्टर होता है, तो और कुछ ऑर्नामेंटल पेपर्स लगे होते हैं ना, तो वो दीवार थोड़ी छिप जाए तो पेपर लगे थे उसके ऊपर। तो इसने क्या किया, 2-3 घंटे वो अंदर था, वो क्लोजेट के अंदर। कौन? टोटो। तो उसने क्या किया, पूरे अपनी उंगलियों से जो है, भी हमने पढ़ा ना, हिज फिंगर्स वेयर सो क्विक, तो अपने क्विक फिंगर से, उंगलियों से जो है, अपने जो नेल्स से उसने क्या किया, नाखूनों से पूरी दीवार के जो ऑर्नामेंटल पेपर्स थे उसको कुरेद दिया, और वो जो वॉल थी एकदम नेकेड ब्रिक और प्लास्टर की दिखने लगी। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड आउट फ्रॉम इट्स सॉकेट। जो पेग था उस पेग को जो है रेंच आउट, खींच कर जो है बाहर निकाल लिया उसने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और एक इसका स्कूल ब्लेजर भी अंदर रखा था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। और जो स्कूल ब्लेजर वहाँ पे रखा था हैंगिंग पोजीशन में था, मतलब लटका के उस पे अंदर रखा था उसने बैठे बैठे उसको पूरा का पूरा फाड़ दिया, पूरे के पूरे उसके टुकड़े कर दिए। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सॉरी आई वंडर्ड मतलब मैं बड़ा डर गया। किस बात से डर गया वो? ग्रैंड मदर क्या कहेगी? बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर जो है वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, उनको बिल्कुल चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, और ग्रैंडफादर जो है ऐसा लग रहा था कि बड़े प्लीज हुए टोटो के परफॉर्मेंस से। ग्रैंडफादर ने कहा, ही इज क्लेवर। क्या कहा ग्रैंडफादर ने? ही इज वेरी क्लेवर। गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और बोल रहा है, ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि वो इतना टैलेंटेड मंकी है, एक टैलेंटेड इतना है टोटो, कि अगर उसको समय दिया गया, गिवन टाइम, तो वो क्या करता, वो तुम्हारे जो ब्लेजर के जो टुकड़े टुकड़े पड़े हैं उनको जोड़ता, उनको टाई अप करता, और इतना ही नहीं, किसी विंडो से उसको बांधता और अपना एस्केप भी कर लेता, यहाँ से भाग भी जाता। ओके, तो
तो इस तरीके से ग्रैंडफादर जो है उसके इस परफॉर्मेंस से बड़े खुश हुए। नाउ हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल ए सीक्रेट, उसके प्रेजेंस को अभी भी सीक्रेट रखा गया था घर में। सीक्रेट यानी गुप्त। क्यों? बिकॉज ग्रैंडफादर डिडंट लाइक, है ना, टू हैव एनिमल्स, है ना, एंटर इन हर हाउस। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. टोटो को अब कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज, उसको एक बड़े पिंजरे में रखा गया। अभी भी सीक्रेट ही है, हाँ, पता नहीं है ग्रैंड मदर को कि वो टोटो ये कोई नया एनिमल हमारे घर में आया है। उसको सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में, बाहर होते हैं ना बड़े बड़े घरों में सर्वेंट्स के क्वार्टर होते हैं आउटसाइड, है ना, उनको आउट हाउस भी बोलते हैं, आउट हाउस। सर्वेंट के क्वार्टर में उनको रखा गया और उन सर्वेंट के क्वार्टर में एक छोटा सा प्राइवेट जू भी था। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, और वहाँ पर ग्रैंडफादर के जो पेट्स थे बड़े हैप्पीली वहाँ पर रहते थे। कौन कौन थे उसमें? सोशियबली का मतलब बड़े मिलजुल कर रहते थे, समझ रहे हैं ना। लेकिन मंकी वहाँ चला गया और इनका जो है सोशियबली टुगेदर रहना जो है पूरा भंग कर दिया, ख़त्म कर दिया। देखिए क्या हुआ। कौन कौन रहता था वहाँ पे? अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट। और वहाँ पे कौन था? इनके पेट गोट भी थी, एक टेम स्क्विरल थी, टेम का मतलब पालतू, हाँ, टॉर्टोइज थे, पेयर ऑफ रैबिट्स और एक खरगोश की पेयर भी थी। बट द मंकी, ये सारे के सारे एनिमल बड़े सोशियबली वहां पर रहते थे। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो मंकी था वो उसके किसी भी कंपेनियन को रात में सोने नहीं देता था। कंपेनियंस यानी साथी, समझ रहे आप। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो दूसरे दिन ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था और वहाँ से उनको सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने साथ किसको ले जाएंगे? इस मिस्चीवस मंकी को भी ले जाएंगे, टोटो को भी ले जाएंगे। टोटो को बड़ा चाहते थे वो, और वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग जो है परेशान हो जाए, और अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो किसी ना किसी तरीके से जो है वो इतना शरारती है कि ग्रैंड मदर को भी पता चल जाएगा। And that is why he decided to take him along with him to Dehradun. Now see, yes. Kindly note down all these word meanings. I have keep it for you only. Okay. आगे देखिए, ये थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा देख लेना आप। यस, आगे बोलते हैं राइटर, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप। उस कंपनी वो जो ट्रिप थी देहरादून और सहारनपुर की जो ट्रिप थी ग्रैंडफादर की, राइटर कहते हैं, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन इसके बारे में उन्होंने मुझे वापस आकर बताया। क्या हुआ था उस ट्रिप में? ट्रिप में कौन कौन गया है साथ में? टोटो गया है। A big black canvas kit bag was provided for Toto. तो टोटो को ले जाने के लिए क्या बनाया गया? एक छोटा सा, एक बिग, बड़ा सा कैनवास किट का बैग, समझते ना, कैनवास का बैग बनाया गया, होते ना ऑफिस जाने के लिए यूज करते बैग, वैसा। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom. Straw का मतलब होता है सूखी घास, उसको थोड़ा अकस्टम लगे, कंफर्टेबल लगे, तो उस बैग के नीचे क्या कर दिया, ऊपर से चेन है बैग को, एक थोड़ा सा घास रखा गया, सूखा घास। ओके। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड यानी प्लेस ऑफ लिविंग होता है, अबोर्ड, ठीक, प्लेस ऑफ लिविंग। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड के मीनिंग भी मैंने निकाले, देखिए ये स्ट्रॉ यानी हे, घास, घास फूस होता है ना, घास फूस, वो है घास। अबोर्ड यानी प्लेस ऑफ लिविंग। ओके,
हाँ आगे देखिए। When the bag was closed, there was no escape. और जब बैग जब बंद हो जाती थी, चेन ऊपर की जब बंद हो जाती थी, तो ऊपर आने की कोई जगह नहीं थी। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और वो कैनवास की बैग इतनी स्ट्रांग थी कि पुराने ज़माने की बैग आप समझ रहे होंगे, वो बैग इतनी स्ट्रांग थी कि आजकल की बैग तो एकदम जो रेक्सिन की होती है, आप देखिए बड़े पुअर प्लास्टिक्स की बनी होती है, कपड़ों की बनी होती है, यूज एंड थ्रो कंडीशन की होती है, लेकिन उस ज़माने की बैग है ये, समझ रहे हैं ना आप। तो वो बड़ी ही पक्की थी, है ना, स्ट्रांग थी। एंड टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ जो है बाहर नहीं निकल पा रहा था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो कैनवास जो है उसके लिए इतना इतना कठिन था, स्ट्रांग था कि अपने हाथ तो बाहर नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अंदर वो कितनी देर रहेगा। हिज एफर्ट्स टू गेट out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air। तो दादाजी ने उस बैग को जो है अपने कंधे पे लटका लिया था, तो उसका जो इफर्ट्स है, उसके जो प्रयत्न है बाहर आने के, उससे क्या हो जाता, वो बैग पूरी रोल हो जाती, समझते हैं ना, इधर के उधर घूमने लगती बैग। और अगर वो ज़मीन पर रखते तो वो बैग जो है क्या हो जाती, जंप करने लगती, या एयर में ही वो जंप करने लगती। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। और देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये एक एग्जीबिशन जैसा कार्य हो रहा था। एग्जीबिशन मतलब लोगों के लिए बड़ा ही ये दृश्य, बड़ा अद्भुत दृश्य था कि जो बैग है वो अपने आप क्या हो रही है, हवा में हिल रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मंकी है, किसी को पता नहीं है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म तक तो ठीक से गया, रेलवे स्टेशन तक, और वो बैग के अंदर सहारनपुर तक अच्छे से रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल। देखिए टर्न स्टाइल का मतलब होता है, ये आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए देखिए, घूमने वाला दरवाज़ा जिसमें एक समय से एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब है अ रिवॉल्विंग डोर दैट ऑलवेज अलाउज वन पर्सन एट ए टाइम टू पास थ्रू। वो घूमने वाले ऐसे दरवाजे होते हैं ना, एक ही आदमी, आप देखिए आपके नवोदय के गेट में भी ऐसे दरवाजे, एक ही आदमी आ सकता है, होते 4 कोने उसके या 2 कोने, लेकिन एक ही आदमी जो है आ सकता है, उसको बोलते हैं टर्न स्टाइल। तो ग्रैंडफादर जब वहाँ से अंदर आ रहे थे रेलवे टर्न स्टाइल से, तो उनको जो है टिकट कलेक्टर ने देख लिया। फिर क्या हुआ, और ग्रैंडफादर उसको टिकट दिखाने लगे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, टोटो सडनली, वो ग्रैंडफादर अपना टिकट जो है शो कर रहे थे, किसको, टिकट कलेक्टर को। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। और उसने जो है बहुत देर से वो क्या कर रहा है, बहुत देर से वो प्रयत्न कर रहा है बाहर आने के। और इस बार क्या हुआ, जैसे ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर, वो थोड़े समय के लिए, समझ रहे ना, वहाँ पर आए, अपनी टिकट दिखाने लगे, उसी समय ग्रैंडफादर जो है उसी समय टोटो ने अपने दांत दिखाए। किसको दांत दिखाए, जोर जोर से वो देखकर हंसा। किसकी तरफ देखकर हंसा, वो टिकट कलेक्टर को देखकर हंसा, एकदम से, देखते ना परली वाइट उसकी दांत है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, एकदम से टिकट कलेक्टर पीछे सरक गया, टेकन अबैक, बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance यानी गुस्सा, he said, लेकिन एकदम उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया अपना, लेकिन उसके इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से ग्रैंडफादर को बड़ा गुस्सा आया।
वो टिकट कलेक्टर कहता है सर, ही सेड सर यू हैव ए डॉग विथ यू। देखिए क्या बोलता है टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर से सर यू हैव ए डॉग विथ यू, आपके साथ तो एक डॉग है। मतलब ही कुडंट रिकॉग्नाइज दैट ही इज ए मंकी, इट इज ए मंकी। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और उन्होंने कहा कि आपको इस डॉग का चार्ज भी देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि डॉग जो है अलाउड नहीं है विदाउट फेयर, बाकी एनिमल्स अलाउड है, लेकिन डॉग का जो है नियम है, इफ यू कैरी ए डॉग विथ यू इन ए ट्रेन यू हैव टू पे फॉर इट ऑल्सो। तो उन्होंने कहा, टिकट कलेक्टर ने कहा कि यू हैव टू पे फॉर द डॉग। देखिए उनके पास क्या है, मंकी है, लेकिन उसने उसको क्या बता दिया, वो डॉग है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन का मतलब होता है ऑफ नो यूज, बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ जब ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग के बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। इन वेन, फिर से बता रहा हूँ, इन वेन का मतलब होता है ऑफ नो यूज। और इस बात का भी कोई फायदा नहीं हुआ कि दादाजी ने उसके टिकट कलेक्टर को बार बार बताया कि एक मंकी जो है वो डॉग नहीं हो सकता है, उसको आप डॉग क्वालिफाई नहीं कर सकते। और इवन एज ए कॉड्रप्ट, डॉग भी नहीं और कॉड्रप्ट भी नहीं। कॉड्रप्ट का मतलब होता है उसका कोई नकली अवतार भी नहीं। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। लेकिन टिकट कलेक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, ये मंकी नहीं है, इट इज ए डॉग एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और उसका जो फेयर है, 3 रुपए का जो फेयर है, वो सहारनपुर का वो फेयर जो है दादाजी से ले लिया गया। और इस तरीके से जो है ये बड़ा ही फनी इंसिडेंट जो है उस सहारनपुर के जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुआ। ओके, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, ग्रैंडफादर ने अपने जो उनके दूसरे जेब से जो है एक छोटा टॉर्टोइज निकाला, बैग की जेब से या उनके जेब से, एंड सेड, और उन्होंने कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सर सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है सारे एनिमल्स का चार्ज कर रहे हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज की तरफ बड़े गौर से देखा। टॉर्टोइज समझते हैं ना, टॉर्टोइज क्या बोलते, कछुआ, यस। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, अपने 4 फिंगर से जो है उसको देखा, ठीक। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक। ग्रैंडफादर को जो है उन्होंने एकदम एक विजयी मुद्रा से उन्होंने कहा, नो चार्ज सर, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इट इज नॉट ए डॉग, इट इज नॉट ए डॉग। उसने पहचान लिया दैट एनिमल इज ए टॉर्टोइज, बट द सेम टिकट कलेक्टर हैज क्वालिफाइड द मंकी टोटो एज द डॉग एंड 3 rupees has been provided to him by the grandfather. ओके, तो बच्चों यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक है। पार्ट 1 है हमारे लिए, और पार्ट 2 का वीडियो मैं मंडे को जो है अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। डू वॉच द होल वीडियो, राइट ऑल द नोट्स and the word meaning and prepare notes also. Thank you very much.